लास्ट क्लास आम कौन पढ़ी फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज फंक्शंस ऑफ द नाउन क्लॉज रो गोटे फंक्शन पढ़ी हाँ हाउ a noun clause can act as a subject of a sentence subject in a sentence like noun words like noun phrases noun clauses also can act can function as subject object of a transitive verb object of a preposition complement. It can act as also an apposition to a noun or pronoun. So there are 5 functions of a noun clause in a sentence. In a sentence, a noun clause can act 5 different roles. It can do 5 different works. Yes or no? And one of the function is the subject of a sentence which a noun clause can do. Or a noun clause can be a subject of a sentence. So last class रे हमें first function भी पढ़ी थिले कौन पढ़ी थिले ना ए जो तीनोटी एग्जांपल हमें देखी थिले what he says is correct here noun clause is what he says because ये what रो start होते एक तो subordinating conjunction and ये डिपेंडेंट क्लॉज बा सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज ये इनकम्प्लीट मीनिंग दउची ए पार्ट ऊपर सेंटेंस रे ए पार्ट ऊपर डिपेंड करूची सेति पई ये हला कोन जो सॉरी एटा होची कोन डिपेंडेंट क्लॉज बा सबऑर्डिनेट क्लॉज एवं ये व्हाट रा आंसर दउची जेहेतु ये व्हाट रा आंसर दउची व्हाट रा आंसर दउची माने तमे जदी ए क्लॉज टी पई व्हाट यूज करिवो आ क्वेश्चन करिवो व्हाट इज करेक्ट तो तुमको आंसर आसी व्हाट ही सेज इज करेक्ट सेति पई ये सब्जेक्ट हे गला ए क्लॉज रे बिकॉज़ ये सब्जेक्ट रो काम करिछि एवं वर्ब पूर्वरु व्हाट इज करेक्ट हम जेतले पचारु जे ये वर्ब पूर्वरु देखो वर्ब होछि के से प्रकृति रे सेंटेंस रो वर्ब के से माने पूरा सेंटेंस रो होछि इज ये क्लॉज रे ये होछि वर्ब आउ गोटे क्लॉज रे इज बट एठी ए क्लॉज रो माने आउ गोटे जो पूरा सेंटेंस रो ये होची मेन वर्ब तो एठी वर्ब पूर्वरु हमें व्हाट लगेले तणु वर्ब पूर्वरु व्हाट आउ हु जदी तमे यूज करछो जो आंसर टे आसे ताको हमें सब्जेक्ट कहबा तो ये व्हाट इज करेक्ट हमें जतले पचरले व्हाट इज सेज इज करेक्ट आंसर आसले एटा क्लॉज टा सेति में हेला सब्जेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस रे मधा दैट हिज फादर हैज कम होम इज ट्रू that his father has come home is true so what is true eta halla amaro noun clause ba dependent clause ba subordinate clause that is subordinating conjunction and ame jetale ya pai what use karuche and question karuche what is true to is purvaru what rochi verb purvaru ebo answer aschi kono that his father has come home is true seti pai ye halla jo noun clause because what ra answer dochi then whether he will stay here for more than a week depends on a lot of things so whether hela conjunction ebong whether he will stay here for more than a week ethi asi gala tamar gote clause complete hela because ethi a gote finite form pole asuchi ha tenu gote finite verb rahila will a gote finite verb rahila depends to gote clause bitere duiti finite verb rahi paribe nahi tenu एठी हमको ये आउ गोटे क्लॉज रो बा पूरा सेंटेंस रो मेन वर्ब हो गेला एवं ये पूरा सेंटेंस रो ए क्लॉज टी सब्जेक्ट हे कि काम करूची बिकॉज़ हमें जेतले क्वेश्चन करूचे व्हाट डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑफ थिंग्स whether he will stay here for more than a week depends on a lot of things तो व्हाट आंसर की है सुची आ जेहेतु वर्ब पूर्व हमें व्हाट यूज करूचे जहां आंसर आसीबो जहां आंसर आसीबो से हो सब्जेक्ट एति हमें पढ़ी देले अबे हम जेबा नेक्स्ट फंक्शन को दैट इज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इज ऑब्जेक्ट ऑफ a transitive verb in these sentences the italicized expressions are noun clauses working as the subjects of the sentences तो माने इन द अबव सेंटेंसेस बुझ परछो आमी जो तीनटा ऊपर जो सेंटेंस पढ़ले
So the italicized expressions are noun clauses working as the subject of the sentences. এই তিনোটি দেখো 1 2 and 3 ये तीनोटी जाक एक्सप्रेशन इटालिसाइज्ड इटालिक वर्ड अछि तो इटालिक वर्ड भितर जोटा लेटर भितर जोटा अछि जो क्लॉज रे से हला कोन सब्जेक्ट ए तीनटा को सेंटेंस रे वर्तमान हमें देखिबा नेक्स्ट 3a व्हाट इज इन दोस सेंटेंसेस Radha said that she was happy. Radha said that she was happy. First of all, we have to identify the subordinate clause. Subordinate clause कोठी अछि subordinate clause रो start होछि तो subordinate conjunction रो start होछि हां कि नहीं in a sentence how could we identify the subordinate clause or dependent clause? The clause, a subordinate clause or a dependent clause started with a subordinating conjunction. So where is subordinating conjunction in this sentence? That is the subordinating conjunction. So it will start with our subordinate clause too. And finite verb is here and another finite verb is here. And let's see this part which started with the subordinating conjunction that whether it gives us complete meaning or not. ए जो पार्ट पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नो स्टार्ट हे जे आरंभ होई छी से जदि हमको कंप्लीट मीनिंग देई दबो ताले से को सबऑर्डिनेट क्लॉज हबो हबनी आमे कंजंक्शन देखले दैट को हम यूज करछे व्हाट को यूज करछे वेदर को यूज करछे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करिके किंतु जदि से पार्ट से कंजंक्शन नो स्टार्ट हेतबा पार्ट हमको कंप्लीट मीनिंग दे देला ताले से कोन सबऑर्डिनेट क्लॉज हबो देखो ताले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज रो स्टार्ट हेते पार्टी हमको कंप्लीट मीनिंग देई परछि नै देखिया दैट शी वाज हैप्पी जैसे देखो तो दैट शी वाज हैप्पी दैट राधा said राधा कहिला जे से हैप्पी थिला जे से हैप्पी थिला जदि हम खाली एक पार्टटा ओडिया रे कहले भी हमको कंप्लीट मीनिंग दोछि कि कोन जे से बा तमे से खुशी थिला बोली राधा कहिला जदि कहि से खुशी थिला बोली कहले माने दैट पई हम कोन लगा जे लगे परबे नले बोली लगे पारे ओडिया रे तो ए जो पार्ट रे अर्थ कोन हबो से हैप्पी थिला से खुशी थिला बोली राधा कहिला बा राधा कहिला जे से खुशी थिला तो हमको जहाँ भी कहबार से खुशी थिला बोली कहले तुमको कंप्लीट मीनिंग आसी कि हमको आउ किछि उत्तर आमे आशा करछु बा आउ किछि पार्ट आशा करछु जे से खुशी थिला कंप्लीट मीनिंग आसुने संपूर्ण अर्थ आसु नाही तेणु एठी जेतडा आमे कहूचे से खुशी थिला बोली राधा कहिला बा राधा कहिला जे से खुशी थिला जेतेबेले एई पार्ट को आमे सेतरे ऐड करके कहूचे सेंटेंस रे पार्ट को ऐड करछे तेतडे हमको ये कंप्लीट मीनिंग दोछि बा हमको संपूर्ण अर्थ जाना पड़छि तो आमे एथु कोन जानले जे ए पार्टी कोन करछे डिपेंड करूछि एई तक ऊपर टू गिव कंप्लीट मीनिंग दिस पार्ट depends on this part to give complete meaning so the part which the clause this is a clause because subject किस है see predicate अछि and this is conjunction subject predicate अछि माने एटा clause एथरे मध्ये subject और predicate अछि एटा clause so दीटा clause रहला जो clause रे डिपेंड करूछि आरो clause ऊपर आ गोटे clause ऊपर से dependent clause बा subordinate clause तो ए subordinate clause ये है because ये हमको complete meaning दे पारनु अब एबे देखिबा हम जानि गले जे होछि subordinate clause subordinate clause this is that होछि subordinate conjunction conjunction अच्छा एबे हम नाउन क्लॉज केम जानिबा ना राधा हमें व्हाट लगे की प्रश्न करबा कोन राधा सेड व्हाट तो व्हाट हमें का पे क्लॉज पे यूज करिले पूरा क्लॉज टा पिला ने ओमिट कर दो व्हाट लगो राधा सेड व्हाट तो आंसर माने क्वेश्चन ठीक अछि कि नहीं राधा कोन कहिला हां कि नहीं तो हमको प्रश्न ठीक अछि माने उत्तर हमको आसीबो राधा सेड दैट शी वाज हैप्पी जेहेतु ये व्हाट आंसर दोछि ताले ये कोन है जो गोटे क्लॉज नाउन क्लॉज हैला देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट होछि
इनकम्प्लीट मीनिंग दउची एवं व्हाट रा आंसर दउची सेति पय हम आपको कोन कहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट हैला डिपेंड करूची आ परे सेति पय सबऑर्डिनेट क्लॉज हैला व्हाट रा आंसर दउची सेति पय नाउन क्लॉज हैला एबे फंक्शन को जीवा कोन काम करची राधा सेड व्हाट वर्ब परे हमें प्रश्न करले ना राधा सेड हैला वर्ब हां तो ता परे ही आसुची व्हाट जदि आफ्टर वर्ब हमें व्हाट हुम यूज करूचे जो आंसर आसे हम त कोन कहबा ऑब्जेक्ट कहबा ता माने ए क्लॉज टी नाउन क्लॉज टी ऑब्जेक्ट हेकरी व्यवहार करे छी वाक्य रे काहर ऑब्जेक्ट हेची ट्रांजिटिव वर्ब सेड रो जो वर्ब टी ऑब्जेक्ट नो छी ताको हमें कोन कहबा ट्रांजिटिव वर्ब कहबा सकर्मक क्रिया कहबा तो ट्रांजिटिव वर्ब सेड रो ये होची ऑब्जेक्ट क्लॉज बुझी लगे नहीं ताऊ दुटा सेंटेंस है बोलिया आई आस्क्ड राधा हाउ शी फेल्ट देखिए कि आसीबो बुझी परिबो यस सुबश्री आस मते कहबो दुटा क्लॉज आइडेंटिफाई करिवो सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करिवो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आइडेंटिफाई करिवो देन तमे व्हाट बा हुम बा कोन लगे प्रश्न करिवो पूरा जेंते ए क्लॉज ता बुझिले सेमिति मते बुझेबोडा এটা হচ্ছে subordinating clause हां এটা subordinating conjunction यस I asked Radha what what answer দিছি তো এটা object ऑब्जेक्ट है काम वेरी गुड तो एठी पिल्ला माने देखो बढ़िया तो हमें पूरा सेंटेंस टा कोन आई आस्क्ड राधा हाउ शी फेल्ट आई आस्क्ड राधा हाउ शी फेल्ट तो एठी पिल्ला माने देखो दुईटी फाइनाइट एक तो तमे क्लॉज जानि जबो केमती फाइनाइट वर्ब जानिबो आस्क्ड अछि गोटे फेल्ट गोटे अछि फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब रहला तेणु दीटी क्लॉज रहला एवं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होला तमे जानला जे एटू स्टार्ट हेला सबऑर्डिनेट क्लॉज हां कि नहीं तो एटा हला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जे स्टार्ट हेछि हेला सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड देखिबा नाउन क्लॉज होछि कि नहीं जदी व्हाट हुम रा आंसर असले नाउन क्लॉज हो प्रश्न करबा एठी व्हाट लगेबा बा हुम लगेबा देखिया कोन को क्वेश्चन फिट होछि को वर्ड आई आस्क्ड राधा व्हाट बा आई आस्क्ड व्हाट मु कोन पचारली राधा आई आस्क्ड व्हाट तठी आई आस्क करे हमर कोन आछि वर्ब आछि ताले ये कोन व्हाट आंसर जे आई आस्क्ड राधा हाउ शी फेल्ट मु राधा को पचारली मु राधा को कोन पचारली उत्तर आछि माने प्रश्न ठीक लागुछ ना नै उत्तर मध्ये आछि मु राधा को पचारली जे से केमिति फील करूथिला बुझि परछो से केमिति फील करूथिला बोली मु राधा को पचारली हाउ शी फेल्ट ताको कोन लागुछि ता केमिति लागुछि बुझि परछो नै ताले आंसर मध्ये आछि क्वेश्चन मध्ये हमें करि परछे व्हाट लगेई करी तणु व्हाट रा आंसर जे आछि से हो नाउन क्लॉज सो दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ए नाउन क्लॉज जेहेतु हमें वर्ब पर व्हाट लगेले सेति भाई ये कोन हेला ऑब्जेक्ट हेला काहारो को वर्ब रो किए से ट्रांजिटिव वर्ब हेला आसीबो सेमति मते नेक्स्ट कहलो टेल मी इफ राधा वुड गो देयर if Radha would go there तो if हेला हमारे कंजंक्शन बुझी परछो if राधा would go there होची सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होची if अच्छा एबे हम जानिबा नाउन क्लॉज कि नहीं टेल मी व्हाट आसी प्रश्न आसी मते कोन कुओ ना राधा आसे ठीक आसीबो की राधा आसी की if माने आसीबो की नहीं बुझी परछो राधा आसीबो कि नहीं मते को बुझी परछो ताले एठी आंसर मध्ये हमको आसला सबऑर्डिनेट क्लॉज हैला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैला व्हाट हमें यूज करले टेल व्हाट बा टेल मी व्हाट वर्ब हैला ता परे आसी व्हाट सो व्हाट रा उत्तर मध्ये आसला ए क्लॉज टी सेति पई ये नाउन क्लॉज हैला जेहेतु ये कंप्लीट मीनिंग दे परनी राधा सेठी की आसीबो कि नाही बा राधा सेठी की आसीबो बोली मते कुहो हाँ कि नहीं तो ये कंप्लीट मीनिंग दे पाने आ पर डिपेंड करूची सेति पई हैला सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड व्हाट आंसर देथबेरु हैला नाउन क्लॉज एंड वर्ब पर हम व्हाट यूज करछे ऑब्जेक्ट होची ये हैला टेल वर्ब रो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब टेल रो ऑब्जेक्ट क्लियर so in these sentences these expressions are noun clauses working as the object of a transitive verb तमे जानि न तो केमति जानिबो बोली खाली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आमे कहि देले होबो कि केमिति आइडेंटिफाई करियो वर्ब पूर्व what who
वर्ब पर व्हाट whom पचार जब उत्तर आसला ताहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानिबो तो इन 3B and 3C ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड टू ऑब्जेक्ट्स इच आ गोटे जिंस कहया बोले छी दीटा ऑब्जेक्ट अछि 3B रे आउ 3C रे दीटा ऑब्जेक्ट अछि केमिति गोटे तो नाउन क्लॉज हे गेला ऑब्जेक्ट हां कि नहीं हां कि नहीं टेल whom I asked whom कहा को पचारली राधा को पचारली तो वर्ब पर whom आसला तो राधा इज ऑब्जेक्ट टेल मी टेल whom टेल मी मते को सो दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट हैला नेक्स्ट फंक्शन को जीवा देखो आगे अछि और अच्छा एटा आउ गोटे एक्सप्रेशन अछि द प्रॉब्लम से यस नेक्स्ट फंक्शन इज the 4A and 4B sentence हमें पढ़वा तापर जानना the difficulty was how we would arrange the font the difficulty was how we would arrange the font कोड पिला ने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कोड अछि how क्लास ताले टू स्टार्ट हला ठीक अछि ताले हमें जानि गले एटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज how हला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हला एबे देखिबा एटा कोन हेछि मु तुमका पूर्वर भी कहि सरछि त माने जानि परथिबो द फर्स्ट ना सेकंड क्लास रे बा थर्ड क्लास रे हम एटा गुटिके पढि दिले द डिफिकल्टी वाज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ हमें जेते बेले कहूचे द डिफिकल्टी वाज तो सेंटेंस कंप्लीट हैला कि प्रेडिकेट कंप्लीट हैला कि तो ये वर्ब टी नीड करूची आउ किछि पार्ट आसीबा पई हां कि नहीं आउ किछि पार्ट आसीबा पई ए वर्ब टी आवश्यक करूची इनकम्प्लीट रहउची जते बेले हमें एई क्लॉज टी को बाहर करि दउचे तो एटा कोन होउची इनकम्प्लीट रहउची ताले एठी हमें कोन कहबा को कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ ये निहाती जरूरी माने एठी सेंटेंस रे रहिबा पई आमे जदि आको बाहर करि दोचे इनकम्प्लीट रहउची ये सब नो तो ए वर्ब टी कोन करूची तार प्रेडिकेट को कंप्लीट करि पारु नै प्रेडिकेट को कंप्लीट करि पारु नाही तो एठी देखो सपोज हमें एही सेंटेंस रे लवा यू शुड पे अटेंशन मु जदर कहली यू शुड पे अटेंशन वर्ब कोड रहला एठी रहला यू शुड पे अटेंशन एठी तो अलगा अछि छाडो एही परिवनी जो कम जोटा तुमको बुझे देउछि अच्छा ठीक अछि देखो जेमति कि मु कहउतली आई एम गोइंग आउ I have a car अच्छा एठी आ गोटे जिंस पळाइसला बुझे बुझ I have a car I am a teacher तीनटा सेंटेंस हमें नबा बुझी परछ तो आई एम गोइंग रे पिला माने ए वर्ब ता तार प्रेडिकेट आउ किछ आशा करू कि कंप्लीट मीनिंग देई परछ ना नहीं प्रेडिकेट तार कंप्लीट अछि ता माने हमको आउ किछ आनिबा दरकार नै तणु ये वर्ब तार कॉम्प्लीमेंट ये सर प्रेडिकेट ए वर्ब पार्ट ये के हला सब्जेक्ट ये हला प्रेडिकेट तो प्रेडिकेट पार्ट तार कंप्लीट अछि ना नहीं कंप्लीट अछि बिकॉज़ इनकम्प्लीट जदि थांता हमको कंप्लीट मीनिंग मिली न थांता तो ये कंप्लीट अछि सेति पई हमें आपको कहले कोन माने कोन आको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहिबा नाही बा कॉम्प्लीमेंट हमें कहिबा नाही बुझी परछ कि नहीं ना नहीं बुझी परलो आउथरे बुझो आई एम गोइंग अच्छा ए सेंटेंस को आई एम गोइंग आई एम ए टीचर ए सेंटेंस को देखो आई हला सब्जेक्ट ये हला प्रेडिकेट आई हला सब्जेक्ट आई एम ए टीचर हला प्रेडिकेट हां कि नहीं प्रेडिकेट पिले माने प्रेडिकेट सबुले वर्ब टू स्टार्ट है कॉम्प्लीमेंट कोन करियो वर्ब परे स्टार्ट हो तो वर्ब एट के रहला आ जत्ते बेले मु ए टीचर पार्ट को बाहर कर दोची एटा कंप्लीट रहउची कि सेंटेंस कंप्लीट होउची कि तणु ए टीचर पार्ट टी निहाती रहबा जरूरी तो ये वर्ब टी कोन कला निजे निजे तार प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट करि पारुनी आउ किछ फ्रेज बा वर्ड को नीड करूची कंप्लीट करबा पई सेति पई आपको हमें कहिले कॉम्प्लीमेंट एवं कॉम्प्लीमेंट सबले केबे आस्ते वर्ब परे आसी थाए डिफरेंट टाइप रो कॉम्प्लीमेंट अछि हमें पढि से क्लास 9 रे एठी मो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कथा तुमको उदाहरण दे कहूची तो ये हला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काहे कि ये सब्जेक्ट विषय
कहूँ प्रथम कथा बुझे चेष्टा कर। अच्छा आउ गोटे जिनस देख एठी तो हमर कॉम्प्लीमेंट कोठी देखिया भर पर देखिबा भर पर किछि नाही किंतु सेंटेंस कंप्लीट होउछि हां कि नै तले एठी कॉम्प्लीमेंट किछि जरूरी नाही बोल आई हैव अ कार मन जेते कहली आई हैव अ कार एठी मध्य ए कार को बाहर कर देले सेंटेंस कंप्लीट होउछि कि होउछि हो नाही किंतु आमे एठी कार को कॉम्प्लीमेंट कहि परिबा नाही काहे कॉम्प्लीमेंट बा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आमे कहार उदाहरण नै जे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हे परिबो नाही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पिला माने गोटे नाउन हेथिबो बा नाउन फ्रेज हेथिबो बा नाउन क्लॉज हेथिबो बा गोटे एडजेक्टिव हेथिबो बुझि परछो गोटे एडजेक्टिव हेथिबो सपोज मु कहली कि शी इज हैप्पी शी इज हैप्पी शी इज हैप्पी तो एठी वर्ब केस है इज जदि हम हैप्पी को बाहर कर दोचे कंप्लीट होउची कि हैप्पी हमर दरकार ना नहीं कंप्लीट करिया में ता माने हैप्पी होची कंप्लीमेंट अच्छा ए जो कहा विषय कहूची ये सब्जेक्ट विषय कहूची सी इज सब्जेक्ट तो ये हला सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एठी मते ए टीचर होची सब्जेक्ट कंप्लीमेंट तो देखो हैप्पी गोटे एडजेक्टिव ना नहीं ए टीचर गोटे नाउन फ्रेज ना नहीं तेणु कॉम्प्लीमेंट सब गोटे नाउन बा प्रोनाउन बा एडजेक्टिव हेथिबो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बुझी पारुछो किंतु ए कार भी तो गोटे नाउन ना नाउन फ्रेज ना ई काहे के हेबेरो डिफरेंस कोन देखिछो कार जे यस एग्जैक्टली कार जे आईसी नुह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब बेले सेही ही हेथिबो निजे बुझी पारुछो एठी देखो आई जे टीचर से ना नहीं सीए जे हैप्पी मध्ये से ना नहीं किंतु आई जे कार से की तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब बड़े सब्जेक्ट ही हेइथबो कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली से सब्जेक्ट विषय ही कहथबो किंतु कार गोटे अलग जिंस आई गोटे अलग जिंस बुझी परछो कार इज समथिंग डिफरेंट थिंग आई इज अ डिफरेंट पर्सन तो दीटा अलग किंतु ते हैप्पी को होची शी इज हैप्पी शी इज ब्यूटीफुल शी इज स्मार्ट शी इज सैड से ही निजे आई एम ए टीचर आई जे टीचर ही सी किंतु मुझे आई हैव ए कार मु एठी कार आ गोटे जगह अछि हां कि नहीं आज जदि कहबे आई एम ए टीचर मु गोटे जगह आ टीचर गोटे जगह ठे अछि बुझी परछो सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बुझी परला तो तेणु सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बा आमे जे एठी तमर जोडा दरकार तमे एठी बुझिबो कि एटा तहले कोन हो पिला माने ऑब्जेक्ट हो हैला आई हैव व्हाट तो ये होची हैव वर्ब रो ऑब्जेक्ट बुझी परला तो एठी कॉम्प्लीमेंट हबो नाही जानि परला एबे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ ऑब्जेक्ट भितरे बा कॉम्प्लीमेंट पाइबार आउ तमेरो असुविधा हबो नाही अच्छा एतो गला एबे वर्तमान आमे देखिबा जे द डिफिकल्टी वाज हाउ वी वुड अरेंज द फंड अच्छा पिला माने देखिलो कोन एठी अर्थ अछि डिफिकल्टी वाज माने प्रॉब्लम होची हाउ वी वुड अरेंज द फंड एटा होची सबऑर्डिनेट क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज डिफिकल्टी जहा माने असुविधाटा एक्चुअली कोन से माने केमिति फंड अरेंज करिवे टंका अरेंजमेंट करिवे हाउ वी वुड अरेंज द फंड आमे केमिति फंड मनी केमिति अरेंजमेंट मनी रो व्यवस्था केमिति करबो सेटा ही प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम जहा मनी अरेंज करबाटा ही तो प्रॉब्लम बुझी परछ कि नहीं एक रे दुई रे आमे जदी ए पार्ट को काटी दउचे कंप्लीट हो नाही प्रेडिकेट पार्ट was the difficulty was incomplete the sentence is now incomplete so the sentence the predicate the verb this verb needs a part or this part to complete the sentence that is why this is complement this noun clause and yes eta noun clause प्रथम आमे subordinate conjunction जानले तापर जानले जे एटा होची subordinate clause बोली because complete meaning देई परनी आ परे निर्भर हां आमे केमिति माने फंड अरेंज करिब आमे जो उपाय रे फंड अरेंज करिबु सेटा ही डिफिकल्ट बुझी परछो बस सेटा ही प्रॉब्लम सेटा ही असुविधा तो एठी ये कोन करछि आ पर डिपेंड करछि सेति पय ये हला सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हाट आंसर दोछि द डिफिकल्टी वाज व्हाट और व्हाट वाज द डिफिकल्टी व्हाट वाज द डिफिकल्टी जदि हमें पचारुचे आसुची कि नहीं उत्तर प्रश्न भी ठीक लागुची व्हाट रो उत्तर जेहेतु देला ये हला गोटे कोन नाउन क्लॉज
एवं ये जेहेतु काटी देला परे सेंटेंस इनकम्प्लीट रहउची प्रेडिकेट इनकम्प्लीट रहउची सेतबे हम याको कॉम्प्लीमेंट कहले हैला कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट भितर डिफरेंस कोन कॉम्प्लीमेंट ई और आई डिफरेंस कोन हां ये कॉम्प्लीमेंट होची पिला ने ग्रामर ये कॉम्प्लीमेंट होची प्रशंसा करिवा कॉम्प्लीमेंट दिया गला बढ़िया बढ़िया आंसर देलो कॉम्प्लीमेंट बढ़िया मार्क रखस हां कि नहीं ए सब जिंस ओके तापर देखियो नेक्स्ट सेंटेंस द प्रॉब्लम इज व्हाट अच्छा प्रथम देखो कंजंक्शन अछि दैट वी डू नॉट हैव एनी मनी हला कोन हमर ताले सबऑर्डिनेट क्लॉज हे गेला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नो स्टार्ट होला ओके एबे हमें व्हाट लगे प्रश्न करे द प्रॉब्लम इज व्हाट और व्हाट इज द प्रॉब्लम तो एठी आसी गला व्हाट जदि हम यूज करते प्रश्न ठीक अछि उत्तर मध्ये आसुची तनु ये हला गटे नाउन क्लॉज जे तो व्हाट र आंसर देला नाउन क्लॉज एबे देखिबा हमें आपको बाहर कर दो द प्रॉब्लम इज हला को इनकम्प्लीट रहउची सेंटेंस ताले ये कंप्लीट करिया पई वाक्य को निहाती दरकार ना नहीं ताले जल्दी दरकार ताले एटा को हम कोन कहबा कॉम्प्लीमेंट कहबा हला कॉम्प्लीमेंट इजी ना नहीं जानि परिबो कॉम्प्लीमेंट जाने सबुठु सहज इज वाज हैव एमते हैव तो नथिबो माने मेनली लिंकिंग वर्ड गुडा थिबो बुझि परछो लिंकिंग वर्ब गुडा को थिबो तमर ओके तो एड ताले हमें तीनोटी फंक्शन पढ़ले अच्छा वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ताले हमें एठी कोन पढ़ले द नाउन क्लॉज इज here the noun clauses are in these sentences in the sentence 4a and 4b the noun clauses working as complements of verbs of incomplete predication so what is the meaning of verbs of incomplete predication definition लिखिने पिला the verb in a sentence if a verb cannot complete its predicate part in a sentence if a verb cannot complete its predicate part and needs and depends like the needs category and depends on some other words or phrases or clauses other elements तम कर परिबो some other words or एमते लिखले बुझि परिबो तम words or phrases or clauses to give complete meaning that word is known as verb of income verb of incomplete predication in a sentence if a verb cannot complete its predicate part and depends and it depends on some other words or phrases or clauses
to give complete meaning, that verb is known as the verb of incomplete predication. Okay. तो लिखि नेलो पिलाने verb of the verbs of incomplete predication माने कौन जो verb in a sentence गोटे वाक्य रे if a verb जदि गोटे verb cannot complete its predicate part ता predicate part को जदि complete करि पारनी and it depends on some other words न करि पारुची एवं कोन करची अलगा वर्ड बा फ्रेज बा क्लॉज ऊपर निर्भर करूची सेही verb जो verb निर्भर करूची जो verb नीड करूची सेही verb that verb is known as verb of incomplete predication है ना। तो नेक्स्ट जो हमरो फंक्शन को जीवा नेक्स्ट फंक्शन to verify this putting in question before the noun clause अच्छा से एडे तुम गोटे ये कहछि जे टू वेरीफाई दिस माने ये कॉम्प्लीमेंट होछि कि नै तमे चेक करियो केमिति ट्राई पुटिंग ए फुल स्टॉप बिफोर द नाउन क्लॉज एटू स्टार्ट हैला तमे एठू गोटे फुल स्टॉप दबो एठू गोटे फुल स्टॉप दबो द डिफिकल्टी वाज ये कोन कंप्लीट होछि कि द प्रॉब्लम इज ये कोन कंप्लीट होछि कि हमें ऑलरेडी कहि सारिछि तो एठा सेति भाई हमें एठू जानले जे ये दीटा होछि कॉम्प्लीमेंट बोली बिकॉज़ ये कॉम्प्लीमेंट कर माने कंप्लीट करे पे दरकार एवं एठी हमें फुल स्टॉप दबा क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखियो यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट आई से देखियो एथरे कोन अछि देखो यू शुड पे अटेंशन टू कोट स्टार्ट हैला बिला माने व्हाट रही गेला ना कंजंक्शन तो एटू स्टार्ट हैला सबऑर्डिनेट ये कंजंक्शन हैला व्हाट एंड व्हाट आई से हैला सबऑर्डिनेट क्लॉज एबे देखियो हमें प्रश्न करबा नाउन क्लॉज में यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट आसिला प्रश्न ठीक हैला तमे काहा को को जिंस को अटेंशन दबा दरकार ना यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट आई से मु जहा कहूची बा मु जहा कहे तमे सेटा को अटेंशन दबा उचित ध्यान दबा उचित दबा दरकार तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज सति पे हैला व्हाट रा आंसर दबार हे गेला नाउन क्लॉज एंड पिला माने देखो प्रीपोजिशन पर अछि ना देखो टू गोटे प्रीपोजिशन अछि प्रीपोजिशन पर ये जेहेतु गोटे नाउन क्लॉज हम जानि सरलेनी व्हाट बोली प्रश्न करिकी तो टू होला प्रीपोजिशन पर पिला माने जे भी नाउन प्रोनाउन आस्ते हम ताको कोन कहिताऊ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट प्रीपोजिशन सो ये होचे ऑब्जेक्ट ऑफ टू ए प्रीपोजिशन ताले ए सेंटेंस रे यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट आई से ए नाउन क्लॉज टी टू रहला ऑब्जेक्ट हां कि नै ताले नाउन क्लॉज रे आ गोटे फंक्शन हम एठी जानले कोन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से देयर इज नो ताले सबऑर्डिनेट क्लॉज कोड स्टार्ट हैला व्हाट यू से हैला सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज़ ये हैला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो ये हैला सबऑर्डिनेट क्लॉज देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट कोथरे किछ अर्थ नै बा कोटा मूल्यहीन ना व्हाट लगे प्रश्न करला ने उत्तर आसी जाउची सेति भाई ये हैला नाउन क्लॉज एवं इन गोटे अछि एठी प्रीपोजिशन गोटे अछि ये गोटे प्रीपोजिशन जेहेतु आमे जानि गेलेनी जे व्हाट रो प्रश्न व्हाट रो उत्तर ये आसुची तेणु ये गोटे नाउन क्लॉज आमे जानि गेलेनी तो प्रीपोजिशन पर जो नाउन रहिबो क्लॉज हो फ्रेज हो वर्ड हो ताको आमे कोन कहबा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन इन यस और नो आ किछि डाउट रहउची कि पिला माने प्रीपोजिशन चिन्हि परिबो प्रीपोजिशन माने प्रथमे सबऑर्डिनेट क्लॉज चिन्हिबो तापर प्रीपोजिशन चिन्हिबो प्रीपोजिशन परे जदि सबऑर्डिनेट क्लॉज अछि आ व्हाट रो उत्तर दो सब जानि दरकार प्रथमे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तापर सबऑर्डिनेट क्लॉज चिन्हट करलो तापर व्हाट लगेबो जदि नाउन क्लॉज होउची पुणी जीवो ता पूर्वरु गोटे प्रीपोजिशन अछि कि से क्लॉज पूर्वरु जदि प्रीपोजिशन अछि आखि बंद करके ताको करबो जे एटा होची प्रीपोजिशन नो ऑब्जेक्ट ठीक सेमती आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू व्हाट मोर ऑब्जेक्शन नहीं व्हाट तमे जहा भी कहू को सेत्र मोर ऑब्जेक्शन नहीं तो व्हाट रा आंसर देला डिपेंड करूची मध्ये या ऊपर व्हाटएवर होची सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हैला सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हाट रो उत्तर देबारु हैला नाउन क्लॉज एवं नाउन क्लॉज पूर्वर गोटे प्रीपोजिशन अछि प्रीपोजिशन पर जे भी नाउन क्लॉज रो नाउन फ्रेज रो नाउन वर्ड रो सेला ऑब्जेक्ट सो दैट इज व्हाई दिस क्लॉज इज
object of this preposition to in this sentence. Clear? बुझेला पिला माने बुझेला तो ठीक अछि आ गोटे तमर रहिला preposition function हां नेक्स्ट फंक्शन पिला माने देखो फिफ्थ फंक्शन होची noun clause can act as an apposition to a noun or pronoun. So let's understand the following examples. Next example is the news that his father has come is true. The news that his father has come is true. Next it is true that his father has come. It is a pity that his father does not come home more often. अच्छा तीनोटी सेंटेंस अछि and कौन तमर explanation देख पिला ने the italicized expression is the noun clause in apposition to the noun phrase the news. In 6b and c the italicized expressions are opposition to the subject it even though they come after the complements. True is an अच्छा आमे याडी के पछरे आसीबा प्रथमे देखबार फंक्शन कोन 6a example आमे कोन ताले जानिले noun clause as subject, noun clause as object of transitive verb, noun clause as object to preposition, noun clause as complement. And now we are going to learn how a noun clause can act as an apposition to a noun or pronoun. So it देखो apposition ना अगर definition टा लिखिने है apposition ना definition टा लिखिने Apposition is a grammatical construction in which two elements, normally nouns, are placed side by side so that one element identifies the other in a different way and the two elements are said to be in apposition. Lection lo तो बुझी पाइडा प्रथमे हम जानिबे अपोजिशन कोन काहेकि ना एठी तमरो अछि नाउन क्लॉज अपोजिशन रो काम करछि सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव टू नो व्हाट इज अपोजिशन इज ए ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एटा गोटे व्याकरणगत गठन बुझि परछो व्याकरणगत गठन इन व्हिच जोथरे की टू एलिमेंट्स माने दीटा नाउन होई परंदी दीटा प्रनाउन होई परंदी गोटे नाउन गोटे प्रनाउन होई पारे गोटे नाउन वर्ड गोटे नाउन फ्रेज होई पारे गोटे नाउन क्लॉज होई पारे गोटे नाउन फ्रेज आ गोटे नाउन क्लॉज गोटे नाउन फ्रेज आ गोटे नाउन क्लॉज होई पारे गोटे नाउन आ गोटे प्रनाउन होई पारे गोटे प्रनाउन आ गोटे नाउन क्लॉज भी होई पारे बुझि परछो तो दुईटा एलिमेंट टू एलिमेंट माने कोन एलिमेंट इंग्लिश रे बा हमर ग्रामर रे एलिमेंट कहले काहा को बुझाय सेही तो हमर वर्ड को बुझेबो लेटर को बुझेबो बा हमर कोन फ्रेज को बुझेबो क्लॉज को बुझेबो सेंटेंस को बुझेबो एमते तो कोन बुझि परछो टू एलिमेंट्स टू एक्सप्रेशंस जोटा कि नॉर्मली नाउन्स माने पिला माने नाउन कहले नाउन वर्ड हे परिबो नाउन फ्रेज हे परिबो नाउन क्लॉज मध्ये हे परिबो एंड प्रोनाउन एतरे नाउन और प्रोनाउन सो अपोजिशन इज ए ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन व्हिच टू एलिमेंट्स साधारणतः नॉर्मली कोन होता है नाउन्स हे थाए दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड अर्थात दुईटे एलिमेंट अर्थात गोटे नाउन आ गोटे नाउन हे पारे बा गोटे प्रोनाउन हे पारे आ गोटे नाउन हे पारे बुझि परछो किछि भी हे पारे क्लॉज फ्रेज किछि भी हे पारे सो एमाने दीटा कोन हेतिबे गोटे सेंटेंस रे दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड पाखा पाखी यूज करा जायथिबे सो दैट वन एलिमेंट आइडेंटिफाइज एमिति थिबे जे सेमाने पाखा पाखी वन एलिमेंट गोटे एलिमेंट कोन करिवो
आइडेंटिफाइज द अदर एलिमेंट गोटे एलिमेंट कौन कर आइडेंटिफाई कर चिन्ह आ गोटे एलिमेंट को ता विषय कहथो इन ए डिफरेंट वे अर्थात एई गोटा को एटा को कौन करथो गोटे डिफरेंट वे रे बा एटा याकू कौन करथो गोटे डिफरेंट वे रे ताकू चिन्हटा करथो बट दे आर द सेम थिंग दे आइडेंटिफाइज द सेम पर्सन और सेम थिंग एंड द टू एलिमेंट्स आर सेड टू बी इन अपोजिशन तो जते बेले कोनोसी सेंटेंस रे कोनोसी क्लॉज रे कोन हेथिबो ना हमर दुईटी एलिमेंट थिबो दुईटी वर्ड हे पारे गोटे वर्ड गोटे फ्रेज हे पारे किंतु नाउन और प्रोनाउन हेथिबे साधारणतः तो सेमाने पाखा पाखी व्यवहार करा जायथिबे एवं दी जण जाक सेम जिंस को ही बुझौथिबे से व्यक्ति हो कोनोसी लोक होंत बा कोनोसी जिंस हो बुझि परछो सेम जिंस को ही बुझौथिबे माने ये जहा हेथिबो से हेथिबो किंतु से जिनसटा को मैं अलग प्रकार लिखिथिबा बा कहूथिबा बुझि परछो ये जहा हेथिबो ये से हेथिबो किंतु खाली गोटे अलग प्रकार लिखाइबो किंतु ए माने गोटे जिंस विषय ही कहूथिबे बुझि परलो जदि एमिति हुए दुईटी एलिमेंट पाखा पाखी व्यवहार करा जायतिबे एवं जणे आउ जण को आइडेंटिफाई करथो टिके अलग वे रे डिफरेंट वे रे ताहाले ए दी जण अपोजिशन रे अछंती बोली कुहा जाय बुझी पारछो कि नहीं एमान कुहा जिवो दे आर इन अपोजिशन बुझी पारछो दे आर इन अपोजिशन सो अपोजिशन इज a grammatical construction in which two elements normally nouns are placed side by side place माने समान रखा जायथे व्यवहार करा जायथे लिखा जायथिबे side by side पाखा पाखी so that one element identifies the other element in a different way the other and the two elements माने से दीटा जग एलिमेंट जदि एमिति हुए ताले से दीटा एलिमेंट अपोजिशन न अछंती बा जणे गोटा को आउ गोटा कर अपोजिशन कुहा जाउछि बोली कुहा जीवो बुझि परले कि नहीं अपोजिशन डेफिनेशन हम बुझी गले एबे जीवा गोटे नाउन क्लास केमते अपोजिशन हे करछु आ पूर्वरु आउ गोटे जिंस देखो एग्जांपल्स तुम कहूछि सपोज हम कहली कि माय फ्रेंड और हम कहली कि शीला my friend is coming here today or he is coming here शीला जी my friend से ना नहीं तो बोली शीला मो संग एठी के आसुची ता माने शीला देखो गोटे वर्ड my friend हला गोटे फ्रेज ये गोटे नाउन वर्ड ये हला गोटे नाउन फ्रेज एठी गोटे कॉमा जीव पिला माने सब हला तो शीला जी मो संग से ना नहीं तो दीटा देखो जिंस गोटी जिंस तेणु ए जो शीला ये शब्दटी बा ये फ्रेज थी हम गला आकु गोटे अलग वे रे आइडेंटिफाई गला किंतु से जिंस माने ये जीए ये से ए शब्दटी बा ये फ्रेज थी हम करछि आकु गोटे अलग प्रकार या विषय रे ताकु कहला माने सेठी आइडेंटिफाई करा सो ए दि जण को हमें कोन कहबा अपोजिशन बुझि परले कि नहीं सपोज हमें कहबा कि महात्मा गांधी हाँ एमके गांधी द फादर ऑफ नेशन तो जिते बड़ा हमें कहू छे एमके गांधी जी फादर ऑफ नेशन सी ना नहीं खाली एमके गांधी को एई फ्रेज रे कोन करछि आ गोटा अलग प्रकार भाव रे चिन्ह होछि तो ये सेम जिंस सो दे आर इन अपोजिशन एमके गांधी और फादर ऑफ नेशन दे आर इन अपोजिशन बुझी परला कि नहीं आ कोन तम माने को एग्जांपल कह परलो कहलो सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया आयरन मैन को जाउनी ना तो हां तो सेटा मध्ये होई परिबो ना नहीं अरे परिबो कि नहीं से दुईटी कौन करा जाई परिबो हमरा अपोजिशन होई परिबो बुझि परिबो कि नहीं आ कौन सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बुल माने जो हमर सरोजिनी नायडू जी बुलबुल बा भारत रो बुलबुल बा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सी दुईटा खाली डिफरेंट वे रे किंतु जण को ही बुझाउछ
तो दे आर इन अपोजिशन सरोजिनी नायडू एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दे आर इन अपोजिशन बुझीपार तो अपोजिशन कौन ताने गोटे जिनस को आउ गोटे जिनस अलग वे खाली बुझे आइडेंटिफाई कर तो एठी सेमिति आमर गोटे क्लॉज रे गोटे नाउन बा प्रोनाउन जहाँ थिबो सेटा को नाउन क्लॉज टा रेफर करथो अलग प्रकार वे बुझी परछो तो देखिबा सेठी केमिति अछि सो सेंटेंस को देखो द न्यूज दैट हिज फादर हैज कम इज ट्रू कोठी अछि कहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन काई क्लॉज कोड स्टार्ट होला तले सेटू दो पर्यंत आसीला को पर्यंत आसीबो कम पर्यंत काहे ना इज तो गोटे फाइनाइट वर्ब रहला हैज गोटे फाइनाइट वर्ब रहला तो आकु जदि तमे मिसेइबो एठी गोटे फाइनाइट वर्ब एठी गोटे क्लॉज रे केबे तीटा फाइनाइट वर्ब रहइबो कि रहइबो नाही तेणु जोठू आमर स्टार्ट हो जाउछि आ गोटे फाइनाइट वर्ब तमे ता पूर्वरु देखिकरी चिन्हिबा को चेष्टा करियो क्लॉज टू कोठी एंड होउछि दैट हिज फादर हैज कम एटा होउछि कोन आमर सबऑर्डिनेट बा डिपेंडेंट क्लॉज एवं कंजंक्शन होउछि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होउछि दैट एबे हमें देखिबा एटा नाउन क्लॉज होउछि कि नाही द न्यूज इज ट्रू आउ गोटे क्लॉज के रहला द न्यूज इज ट्रू जोटा के इंडिपेंडेंट क्लॉज बा प्रिंसिपल क्लॉज बुझि परछो द न्यूज इज ट्रू अच्छा हमें एठी कोन प्रश्न करिया व्हाट यूज करिया व्हाट इज ट्रू आसिना नहीं व्हाट इज ट्रू तो एठी कोन होला ना व्हाट पई हमारा आंसर एटा आसी गला सेति में हमें एटा जानिले नाउन क्लॉज फंक्शन कोन जानिबा देखो पिला माने ए जो नाउन क्लॉज टी एक्चुअली व्हाट इज ट्रू आमे जदी कहले कि व्हाट इज ट्रू ना तांगा पापा घर को आछंदी सेटा ही ट्रू सत्य तापर याकू छाड़ देले द न्यूज इज ट्रू खबरटी सत्य हां कि नहीं खबरटी सत्य तांका बापा घर को आछंदी ए कथा सत्य ताले व्हाट इज द न्यूज न्यूज ता खबरटा कोन ना तांका बापा घर को आछन सो द न्यूज इज ट्रू दैट इज द फादर हैज कम इज ट्रू न्यूज जहा न्यूज ता ही जिनस ताले द न्यूज पाई बन द न्यूज को डिफरेंट वे रे एक्सप्रेस करूची के से एक क्लॉज ना नहीं बुझियला तो तुमको खबरटा सत्य कौन खबरटा तांका बापा घर को आछंदी बहुत दिन पर ताले खबरटा जहा सेटा को डिफरेंट वे रे एक्सप्रेस करा गला गोटे क्लॉज तांका बापा आछन हां कि नहीं ताले द न्यूज होची गोटे नाउन फ्रेज यस और नो the news is a noun phrase and this is a noun clause and ye jaha ye seya so they are in a position एठी कोन ऑब्जेक्ट होची किछि प्रीपोजिशन अछि कि ट्रांजिटिव वर्ब अछि कि अच्छा सब्जेक्ट है छि कि सब्जेक्ट है छि ना सब्जेक्ट हेनी पिला माने काहे ना ये ऑलरेडी पूरा सेंटेंस में सब्जेक्ट हेनी ये ऑलरेडी गोटे क्लॉज जोथरे कि तार अछि सब्जेक्ट एंड ये होची प्रेडिकेट एंड एथि रे आउ गोटे क्लॉज अछि ये होची सब्जेक्ट ये होची प्रेडिकेट हां कि नहीं दुईटा क्लॉज हेला ना नहीं तो दुईटा क्लॉज रे पिलन देखो दुईटा क्लॉज रे द न्यूज इज ट्रू होची गोटे क्लॉज जोथरे कि द न्यूज इज सब्जेक्ट एंड इज ट्रू इज प्रेडिकेट एवं ये होची डिपेंडेंट क्लॉज या नाउन क्लॉज हमें पाई गेलनी एथरे हिज फादर इज सब्जेक्ट हैज कम इज प्रेडिकेट दैट होची कंजंक्शन बुझि परलो तो एठी न्यूज टी जहा तांको बापा आछन्ते सेया तेणु करी ए क्लॉज होची गोटे अपोजिशन ए नाउन फ्रेज रो बुझि हला कि बुझि होची पिला ने दीपंकर सिद्धांत रुद्र श्रीधर समस्त को बुझि हला पिला माने हां नेक्स्ट सेंटेंस दिबा इट इज ट्रू दैट हिज फादर हैज कम इट इज ट्रू that his father has come कोड रहला नाउन क्लॉज एटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज सेम जिंस अछि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज रहला ओके एबे देखिबा ये कोन फंक्शन करछ इट इज ट्रू ए सत्य एटा कोन ए सत्य जे तांका बापा आछंदी ए सत्य कोन सत्य जे तांका बापा आछंदी तो ईट पई ईट ता जहा यह जहा
से कथाटी ए कथाटी सत से कथाटा कौन तांका बापा आसन त माने व्हाट इज ट्रू इट इज ट्रू तापर तमे कहबो कि व्हाट इज ट्रू एठी तमे दैट इज फादर हैज कम इज ट्रू त माने इट जहा बा इट तमे या पाई ही बसैछो बा प्रोनाउन गोटे प्रोनाउन पाई तमे गोटे क्लॉज को एक्सप्रेस करलो अरे कथा सत कौन सत तांका बापा आसन तमे जो एटा सत एटा अरे कोटा सत ना तांका बापा आसन घर को तांका बापा आसन सेटा सत त माने से तमे जो एटा लगेलो इट पाई कोन यूज करलो तमे गोटे क्लॉज रे व्यवहार करलो त इट जहा को जो जिंस को रेफर करूची ए क्लॉज टी मजे से जिंस को रेफर करूची ताले ये गोटे प्रोनाउन रो नाउन क्लॉज टी अपोजिशन हैला कि नै एवं तमे व्हाट केमिति यूज करियो पिला माने देखो एठू नबो व्हाट एठू व्हाट नबो यूज की काहे कि ना ये जी ये तो सी ना तण तमे व्हाट इट इज ट्रू बोली करबो नै व्हाट इज ट्रू एठी जेंति गलो देखो आ ऊपर सेंटेंस रे देखो हमें को गले व्हाट इज ट्रू that his father has come true is true what is true the news is true सेमते एठी ती थरो जोठी तमको व्हाट यूज करिया पड़थिबो सेठी तमे जानिबो जे एठी होची अपोजिशन व्हाट बा हु हुम जा भी तमको थिबो सेठी तमे डबल टाइम एक्सप्रेस किंतु अलगाठी पिला माने देखले आमे जो या पूर्वरु पढी छे एठी देखो देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट गोटे थरो होछ ना नहीं आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू व्हाट यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट the difficulty was what the problem is what or what was the difficulty what is the problem होछ ना नहीं गोटे थरा होछ ना नहीं तो आउ चारिटा जाक फंक्शन ने तमे कोन करिवो वन टाइम क्वेश्चन करिवो किंतु अपोजिशन ने तुमको अखड़ लगिवो कहीं होउनी तो तमे सिटी दी थरा ट्राई करिवो हैला दी थरा ट्राई करले तमे जानिवो जे दुईटी क्लॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई कर देबो एवं द न्यूज़ इज ट्रू व्हाट इज ट्रू न्यूज आसला व्हाट इज ट्रू इट आसला इट इज ट्रू व्हाट इज ट्रू इट इज ट्रू व्हाट इज ट्रू दैट इज फादर हैज कम इज ट्रू बुझी परलो नेक्स्ट इट इज अ पिटी दैट हिज फादर डज नॉट कम होम मोर ऑफन इट इज अ पिटी दैट हिज फादर डज नॉट कम होम मोर ऑफन केमती क्वेश्चन करबो कला अच्छा प्रथमे हमें कोन करबा सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करले ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज काहे कि ना ये कंप्लीट मीनिंग दौनी एकरे तापर देखिबा व्हाट यूज करबा इट इज अ पिटी तमे व्हाट लगेबो व्हाट इज अ पिटी आंसर आसीबो दैट हिज फादर डज नॉट कम होम मोर ऑफन इज अ पिटी व्हाट इज अ पिटी इट इज अ पिटी बुझी पारछ कि नहीं तो इट पाई कौन लगिला दैट इज फादर डज नॉट कम होम पिट्टी माने कोन दुख एटा गोटे दुख कोन एटा गोटे बहुत दुख ना कोन कोटा दुख ना तांको बापा अधिकांश घर को आसु नाहंती सेटा होची दुख तमे जो एई कथाटी बा एटा इट बा से माने एहा दुखटा कोन तांको बापा घर को आसु नाहंती बेसी समय मोर ऑफन अधिकांश घर को आसु नाहंती ताले एठी जानि परलो डबल टाइम हमें वर्ड को यूज करूछे तो एठी लास्ट फंक्शन तमर थिला पिला माने अपोजिशन ताले एठी क्लॉज टी नाउन क्लॉज टी कोन हैला ना ए प्रोनाउन रो अपोजिशन हैला बुझी परलो तो हमें फर्स्ट जक फंक्शन बुझी हैला ना कोडी डिफिकल्ट लेबा आइडेंटिफाई करि परिबो आर नेक्स्ट क्लास रे मु पाखा पाखी 15 to 20 क्वेश्चंस बनै के आनिथिबी एंड तमे माने मते सब तक फंक्शन कहबो आइडेंटिफाई करिवो फंक्शन कहबो बुझी परुछो एबे त हमें बही रे बुझी गले अच्छा एबे हम किछि देखो एटा मध्ये समर एक्सप्लेनेशन देछि इन 6a द italicized expression is a noun clause in opposition to the noun phrase the news and 6b the italicized expression are in opposition to the subject it by even though they come after the complements even though they come after the एटा तम जानि परलो ना एटा even though they come after the complement परे आसुछंती that is कोठी आसला to the subject it even though they come after the complement oh complement yes sorry true है complement ना
इट इज ट्रू से क्लॉज रे ए क्लॉज रे कॉम्प्लीमेंट कैसे ट्रू होबनी अरे ट्रू की छाड़ देले एटा कंप्लीट होची की सो एठी कोन हला ट्रू होची कॉम्प्लीमेंट इट टा कोन होची इट नाउन क्लॉज कथा कहछि इवन दो से कहछि जे एथ रे नाउन क्लॉज टी इट रो होची अपोजिशन जदियो नाउन क्लॉज टी कॉम्प्लीमेंट परे आसुची बुझी परछो कॉम्प्लीमेंट परे आसु किंतु देखो काहा परे आसुची कोन आसु तमे एते जिंस न भाबिकरी तमे देखिबो क्वेश्चन करिवो जदि से नाउन बा प्रोनाउन पई नाउन क्लॉज टी यूज करा हेछि आउ थरे ताल तमे जानिबो सेटा होछि अपोजिशन बुझी परलो तो तुमको एठी की जिबार आवश्यकता ना खाली तुमको बुझा जाय से ट्रू होछि ओडे कॉम्प्लीमेंट द कम आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्स एठी मध्ये देखो इट इज अ पीटी ए क्लॉज रे पिलाने इट सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट तापर वर्ब पर जो पार्टी रही छी ए पीटी एटा कोन कॉम्प्लीमेंट ना हां कि नहीं कहना आपको बाहर कर देले कंप्लीट होनी सेंटेंस सो ट्रू इज एन एडजेक्टिव पीटी इज अ नाउन कोन कहतली मु सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुडा को कोन है गोटे एडजेक्टिव हेतु न नाउन बा प्रोनाउन हेतु तो एठी ट्रू होची गोटे एडजेक्टिव ए सेंटेंस रे एवं पीटी पिला माने गोटे नाउन केमति जानिबो ए अछि बुझी परछो सो पीटी इज अ नाउन बट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इज ए वर्ब रो कॉम्प्लीमेंट का रो वर्ब रो एंड अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बुझी परछो तो सेही वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होची इज जहार की कॉम्प्लीमेंट होचंदी एमाने किंतु हमरो कथा होची कोन नाउन क्लॉज होची यार अपोजिशन एठी नाउन क्लॉज होची यार अपोजिशन एठी नाउन क्लॉज होची द न्यूज नाउन फ्रेज रा अपोजिशन so 1 to 6 we see that a noun clause was in the sentence as a noun it usually begins with a wh word if or that तो नाउन क्लॉज कोथरे wh word what when who एगुडा सब रु स्टार्ट होची if रु मध्ये स्टार्ट हे परबो that रु मध्ये स्टार्ट हे परबो in some cases that may be hidden 3a 4b पिला माने देखो एटी 3a सेंटेंस को देखो और 4b सेंटेंस तमे एटा को that को hidden माने जोटा कंजंक्शन थिबो सेटा माने हाइड हेकरी रही पारे तमे न यूज करी मध्ये लिखि परबो सेंटेंस the problem is we do not have any money लिखि पारिबो किंतु तुमको सेठी कोन करिया को पड़िबो ब्रैकेट रे नहीं तुमको जानिया को पड़िबो जे एठी गोटा अछि क्लॉज टेबल बुझि परछो सो द प्रॉब्लम इज we do not have any money एठी मतलब दैट को तमे न रखि कि तमे क्लॉज बनै पारिबो एंड 3a रे कोन अछि देखो सेंटेंस 3a राधा said she was happy दैट को एठी मध्ये तमे हाइड करके रखि पारिबो बुझि परलो तो तमरो फंक्शंस आज सॉरी जाइछि फंक्शंस सर जाइछि आपरे एक्टिविटीज करबा हैला